یہ تو وہی روڈ ہے جس پر اس عمران کا فلیٹ ہے، مجھے باس نے اس روڈ کا بتایا تھا۔ کارٹر نے یکلخ ایک دکان کے بورڈ کو پڑھتے ہوئے چونک کر کہا۔ تو کیا مطلب ہے؟ کیا تم مجھ سے ابھی ملنا چاہتے ہو؟ ساتھ چلتی ہوئی مارگریٹ نے پوچھا۔ میرے خیال میں اب ادھر آ ہی نکلے ہیں تو یہ کام بھی ہو جانا چاہیے، کارٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن سوچ لو، چیف باس نے سختی سے منع کیا ہے، مارگریٹ نے کہا۔ ارے چیف باس تو یوں ہی ہر بات میں الجھ جاتا ہے، اب بوڑھا ہو گیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، بس ایک گولی اس کے سینے میں اتارنی ہے اور مسئلہ ختم، کارٹر نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ عمران کے فلیٹ کے سامنے رک گیا۔ ہاں یہی نمبر ہے، ٹھیک ہے، آؤ میں بھی دیکھوں کہ آخر یہ ہے کیا شے، کارٹر نے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مارگریٹ اس کے پیچھے تھی۔ اوپر فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ کارٹر نے ہاتھ اٹھا کر کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد اندر سے آتے ہوئے قدموں کی آواز ابھری تو کارٹر نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال لیا۔ کون ہے؟ دروازہ کھولنے سے پہلے ایک مردانہ آواز ابھری۔ دروازہ کھولو، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، کارٹر نے کہا تو دروازہ کھل گیا۔ علی عمران کا فلیٹ یہی ہے؟ کارٹر نے دروازے میں کھڑے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی سے پوچھا جو ان دونوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں یہی ہے، لیکن وہ موجود نہیں ہے، دروازہ کھولنے والے نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم نے انہیں ضروری ملنا ہے، ہم ناڈا سے آئے ہیں، صرف انہیں کو ملنے کے لیے آئے ہیں، کارٹر نے کہا۔ آپ اپنا پتہ بتا جائیں، جب وہ آئیں گے تو انہیں بتا دوں گی، دروازہ کھولنے والے نے کہا۔ اگر وہ گھنٹے تک آ سکتے ہیں تو ہم یہیں انتظار کر لیتے ہیں، کارٹر نے کہا۔ ان کا کچھ پتہ نہیں، آ جائیں تو ابھی آ جائیں، نہ آئیں تو 10 دن تک نہ آئیں، دروازہ کھولنے والے نے کہا۔ اوہ، تم ان کے ملازم ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ کارٹر نے کہا۔ میرا نام سلیمان ہے اور میں ان کا ملازم نہیں، وہ میرے ملازم ہیں، دروازہ کھولنے والے نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، وہ تمہارا ملازم ہے؟ کارٹر سلیمان کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔ مطلب اسی سے پوچھ لینا اور جو کچھ کہنا ہے جلدی بتاؤ، میں ضروری کام میں مصروف ہوں، سلیمان نے کہا۔ فون نمبر بتا دو، ہم فون پر پوچھ لیں گے، کارٹر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور سلیمان نے جلدی سے فون نمبر بتایا اور پھر ایک دھماکے سے دروازہ بند کر دیا۔ بڑا نک چڑھا آدمی ہے، مارگریٹ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا دل تو کرتا تھا کہ ایک گولی اس کے سینے میں اتار دوں، لیکن میں اس عمران کو چونکانا نہیں چاہتا، کارٹر نے کہا اور تیزی سے سینیاں اترتا چلا گیا۔ میں بور ہو گئی ہوں، کسی بار میں چلو، مارگریٹ نے کہا اور کارٹر نے سر ہلاتے ہوئے ایک خالی ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ کسی اچھے سے بار میں چلو، کارٹر نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ڈرائیور نے اسٹارٹ بال کے سامنے ٹیکسی روکتے ہوئے کہا، یہ دارالحکومت کی سب سے اچھی بات ہے جناب۔ اوہ تھینک یو، کارٹر نے کہا اور پھر نیچے اتر کر اس نے ایک منہ ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا اور بغیر کچھ واپس لیے بار کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بار واقعی شاندار اور وسیع تھی اور وہاں بیٹھے ہوئے افراد بھی خاصے معزز لگ رہے تھے۔ یہ تو واقعی اچھی بار لگتی ہے، کارٹر نے ایک میز کے گرد رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور مارگریٹ نے بھی سر ہلا دیا، وہ بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کارٹر نے ویٹر کو وسکی لانے کے لیے کہا اور ویٹر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی میز پر وسکی سرو کر دی گئی اور وہ اس کے سامنے پینے میں مصروف ہو گئے۔ اسی لمحے ویٹر تیزی سے ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ سر، آپ کا نام کارٹر ہے؟ ویٹر نے قریب آ کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں؟ کارٹر ویٹر کی زبان سے اپنا نام سن کر بری طرح چونک پڑا۔ مارگریٹ بھی چونکی تھی۔ آپ کا فون ہے کاؤنٹر پر، ویٹر نے جواب دیا۔ میرا فون؟ کسی اور کا ہوگا، کارٹر نے یقین نہ کرنے والے لہجے میں کہا۔ آپ ہی کا ہے، کوئی براؤن صاحب ہے، ویٹر نے جواب دیا تو کارٹر یکلخ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ ٹھیک ہے، کارٹر نے کہا اور پھر وہ تقریباً دوڑتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو، کارٹر نے ایک طرف رکھا ہوا ریسیور اٹھا کر کہا۔ مسٹر کارٹر؟ دوسری طرف سے براؤن کی آواز سنائی دی۔ یس، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ کارٹر نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ اور سر، میں نے آپ کی حفاظت کے لیے اپنے آدمی تعینات کر دیے ہیں کیونکہ آپ میرے مہمان ہیں، عید کی وجہ سے مجھے معلوم ہوا ہے۔ آپ کے لیے ایک خبر ہے جناب، دو مقامی آدمی
उन आदमी के मतलब पूछते हुए जीरो घाट पहुंच गए हैं जिन्हें मैंने पासान किया है। इन्हें मेरे मुतल्लिक भी इल्म है, लेकिन वो वहां मेरे खास आदमी से टकरा गए तो वो आदमी उन्हें लेकर एक पॉइंट पर पहुंच गया है और मुझे खबर दी है। मैं तो माल को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने सोचा कि आप उन्हें चेक कर लें कि ये कौन है। दूसरी तरफ से ब्राउन ने कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। कार्टर ने उर्दे हुए लहजे में कहा, जो माल आपने मुझे पास ऑन करने के लिए दिया था आप समझ गए होंगे। ब्राउन ने कहा, हाँ, तुमने तो बताया था कि वो महफूज जगह पहुंच गया है। कार्टर ने होंठ काटते हुए कहा, हाँ, वो वाकई महफूज है। उसके मुतालिक तो आप बेफिक्र रहें। इस माल के मुतालिक पूछते हुए दो मकामी आदमी, जिनमें से एक का नाम मास्टर कोबरा और दूसरे का नाम जेक है, जीरो घाट पहुंचे हैं। इन्हें ये भी मालूम है कि माल मेरे जरिए पास ऑन हुआ है। वो मुझे ट्रेस करना चाहते थे, लेकिन वहां मेरा आदमी उनसे टकरा गया और फिर वो उन्हें खुले समंदर में मेरे खुफिया अड्डे पर ले गया है। वो मेरे आदमी ने मुझे उनके मुतालिक खबर दी है। मैंने उसे इंतजार करने के लिए कह दिया है, लेकिन मेरा ये असूल नहीं है कि मैं माल को गैर महफूज छोड़ दूं, इसलिए मैं वहां खुद नहीं जाना चाहता। लेकिन ये मालूम करना जरूरी है कि वो कौन लोग हैं। चूंकि वो आपके माल के मुतालिक है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर आप चाहें तो उनसे मिलकर मालूम कर लें कि वो कौन लोग हैं। ब्राउन ने तफसील बताते हुए कहा, ठीक है, ये तो बहुत अहम बात है। कहाँ है वो? कार्टर ने सर हिलाते हुए कहा, वो एक खास पॉइंट पर है। मेरा आदमी आपको वहां ले जाएगा। आप उस होटल से बाहर निकलकर अपने सर पर 2 बार हाथ फेरें तो वो आपके पास आ जाएगा। मैंने उसे कह दिया है, वो आपको वहां ले जाएगा। ब्राउन ने जवाब दिया, मेरे पहुंचने तक वो आदमी निकल ना जाए। कार्टर ने कहा, नहीं जनाब, वो मेरे खास अड्डे में है, वहां से उनकी लाशें ही निकल सकती हैं। आप बेफिक्र रहें। मेरा आदमी जो उन्हें वहां ले आया है उसका नाम मुराद है। वो वहां आपको रिसीव कर लेगा। ब्राउन ने कहा, ठीक है। कार्टर ने कहा, रिसीवर रखकर उसने जल्दी से जेब से एक नोट निकाल कर काउंटर पर रखा और कुर्सी पर बैठे हुए मार्गरेट के चलने का इशारा करते हुए वो तेजी से बैडरूम दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार नुमाया थे। खुले समंदर में लॉन्च खासी तेजी रफ्तारी से दौड़ रही थी। इमरान और सफदर बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर बैठे हुए थे। लॉन्च मुराद खुद चला रहा था। अलबत्ता इमरान ने पीछे आने वाली दोनों लॉन्चें देख ली थी, लेकिन वो मुतमईन अंदाज में बैठा रहा। मुझे इस आदमी की नीयत ठीक नहीं लगती, सफदर ने फ्रांसीसी जुबान में बात करते हुए कहा। जूलिया ये बात कहती तो शायद मुझे तशवीश होती। क्या तुमने अपने आप को जूलिया तो नहीं समझ लिया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सफदर खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरा ये मतलब नहीं था, सफदर ने हंसते हुए कहा। मतलब का ही तो सारा चक्कर है। लोग मतलब निकालने के बाद आंखें फेर लेते हैं, लेकिन जूलिया मतलब से पहले ही आंखें फेरने लग गई है, इमरान ने कहा और सफदर एक बार फिर हंस पड़ा। आप खामखा जूलिया पर एतराज कर रहे हैं, आंखें तो आप फेर लेते हैं, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। आजकल ये काम तनवीर ने संभाल लिया है। शार्टन के कैबिन में वो मुझ पर इस तरह लड़ने लगा जैसे मेरी नीयत पर उसे शक पड़ गया हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे लड़ने लड़ गया था? वो क्यों? वो इतना भी अहमक नहीं है। आपने कोई ऐसी बात कर दी होगी, सफदर ने कहा। बात तो होती रहती है, लेकिन इस बार उसका अंदाज बदला हुआ था। मुझे तो कोई और शक पड़ रहा है, इमरान ने कहा। कैसा शक? सफदर ने चौंक कर पूछा। शायद जूलिया ने उससे कोई वादा कर लिया है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। जूलिया ने वादा कर लिया था तो फिर उससे आपके साथ लड़ने की क्या तुक निकलती है? सफदर वाकई हैरत भरे अंदाज में पूछ रहा था। तुम जूलिया के वादे को क्या समझते हो? उसके वादे के बाद तो तनवीर पूरी दुनिया से लड़ने पर तैयार हो सकता है, मेरी क्या हैसियत है? इमरान ने मानी खेज लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, मैं समझ गया। आपका मतलब है ऐसा होना नामुमकिन है। जूलिया का इस तरह का वादा नामुमकिन है, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। औरत के बदलते देर लगती है। अब देखो, तुम बदल सकते हो तो जूलिया कैसे नहीं बदल सकती? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं बदल गया हूँ? वो कैसे? सफदर ने हैरान होकर पूछा। अभी तुम मुराद की नीयत के बारे में क्या कह रहे थे? इमरान ने कहा और सफदर इमरान की बात समझकर हंस पड़ा। उसी लम्हे मुराद ने लॉन्च का रुख मोड़ा
तो वो दोनों चौंक पड़े। दूर एक छोटा सा जजीरा नजर आ रहा था और मुराद ने लॉन्च का रुख उधर ही मोड़ दिया था। क्या ब्राउन इतनी दूर रहता है? इमरान ने अपनी जुबान में बोलते हुए मुराद से मुखातिब होकर कहा, क्योंकि अब वो मुसलसल फ्रांसीसी जुबान में बात कर रहे थे, लेकिन अब वो उर्दू में बोल रहा था। हाँ, वो इधर ही है, मुराद ने जवाब दिया। क्या नाम है इस जजीरे का? इमरान ने दूसरा सवाल किया। इसका कोई नाम नहीं है, मुराद ने कदरे सख्त लहजे में कहा। वाह, कोई नाम नहीं? अच्छा नाम है। वैसे मेरी माना तो अपने नाम पे इसका नाम रख लो, तारीख में नहीं तो कम से कम ज्योग्राफी में तुम्हारा नाम आ ही जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मुराद ने कोई जवाब न दिया। लॉन्च जजीरे की तरफ बढ़ी जा रही थी, लेकिन अब उसकी रफ्तार पहले की निस्बत काफी कम थी। पीछे आने वाली लॉन्चें जो पहले काफी फासले पर थी, अब तेजी से करीब आती जा रही हैं। ये दोनों लॉन्चें तुम्हारे साथियों की हैं? इमरान ने मुराद से कहा। ओ हाँ, दरअसल ये हमारा उसूल है, हम अकेले कभी नहीं चलते, मुराद ने सर हिलाते हुए कहा और इमरान खामोश हो गया। लॉन्च थोड़ी देर बाद जजीरे पर पहुंच गई। पीछे आने वाली दोनों लॉन्चें भी उनके साथ पहुंचकर रुक गई। दोनों लॉन्चें में 6 अफराद थे, जो सब के सब शक्ल से ही लड़ाका लग रहे थे। आ जाओ, मुराद ने लॉन्च हुक करके जजीरे की चट्टान पर लगाते हुए कहा, और इमरान और सफदर लॉन्च पर से चट्टान पर कूद गए। दोनों लॉन्चों पर आने वाले भी उनके पीछे आने लगे। जजीरे का अंदरूनी हिस्सा दरख्तों से खाली था, सिर्फ किनारों पर ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। जजीरे पर पहुंचते ही दरख्तों के पीछे से निकलकर मशीन गनों से मुसल्ले 2 आदमी आगे बढ़े। बॉस मौजूद हैं? मुराद ने उनमें से एक से बात करते हुए कहा। उसका लहजा खासा सख्त था और इमरान समझ गया कि मुराद इस ब्राउन के ग्रुप में खासी अहमियत रखता है। नहीं, वो तो जीरो लैंड पर हैं। क्यों? आने वाले ने कहा। ये बॉस के भी बॉस हैं और उन्होंने बॉस से बात करनी है। मैं उनसे ट्रांसमीटर पर बात कर लेता हूँ, मुराद ने मुसल्ले अफराद से कहा और मुसल्ले अफराद ने सर हिला दिए। काफी आगे जाकर उन्हें एक बड़ा सा कैबिन नजर आया। उसके बाहर 2 मुसल्ले अफराद खड़े थे। लॉन्चों से उतरने वाले सारे काफिला उनके पीछे चलता हुआ कैबिन में दाखिल हो गया। कैबिन के दरमियान में एक मेज और उसके गिर्द कुर्सियां पड़ी हुई थी, जबकि इस साइड पर फौलाद की बनी हुई एक बड़ी सी अलमारी भी मौजूद थी। अंदर एक और मुसल्ले आदमी मौजूद था। टॉम, ट्रांसमीटर निकालो, मैंने बॉस से बात करनी है, मुराद ने अंदर मौजूद आदमी से मुखातिब होकर कहा और वो सर हिलाता हुआ उस फौलादी अलमारी की तरफ बढ़ गया। इमरान और सफदर बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गए। उस आदमी टॉम ने अलमारी खोलकर एक ट्रांसमीटर निकाला और उसे मेज पर रख दिया। इमरान ने देखा कि यह ट्रांसमीटर 1 साइडेड था, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी एक ही थी। मुराद ने ट्रांसमीटर का बटन दबाया तो ट्रांसमीटर पर मौजूद सुर्ख रंग का बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। हेलो हेलो, मुराद कॉलिंग बॉस, ओवर। मुराद ने बार बार फिक्र दोहराना शुरू कर दिया। यस, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक आवाज उभरी और ट्रांसमीटर पर जलने बुझने वाला बल्ब अब मुसलसल जलने लगा था। बॉस, मैं पॉइंट 01 से बोल रहा हूँ। 2 आदमी जो अपने आप को आपका बॉस बताते हैं, उनमें से एक का नाम मास्टर कोबरा है और दूसरे का नाम जेक है। जीरो घाट पर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलकर आपकी रकम अदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो जरूरी काम के लिए पाजान जानना चाहते हैं। उन्होंने अपने पास होने वाले माल का भी सही हवाला दिया है, ओवर, मुराद ने कहा। कौन मास्टर कोबरा? मैं किसी मास्टर कोबरा को नहीं जानता, ओवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा खासा तल्ख था। मिस्टर ब्राउन, मेरा नाम कोबरा है, तुम मुझे नहीं जानते। शनाख्त के लिए इस गैर मुल्की का हवाला दे रहा हूँ जिसने माल पास करने के लिए दिया था और जिसे तुम अपनी जर्द रंग की कार में डॉक्टर की कोठी से लाए थे। एक अहम तरीन बात करनी है इस माल के सिलसिले में। इसमें तुम्हारा और उस गैर मुल्की दोनों का फायदा है। अगर तुम नहीं मिलोगे तो फिर लंबा नुकसान हो जाएगा, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। आपने इसकी बात सुन ली बॉस? अब क्या हुक्म है, ओवर। इमरान का फिक्र खत्म होते ही ट्रांसमीटर के पास बैठे हुए मुराद ने कहा, मुराद, तुम इसका ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ। और सुनो, इन्हें यहाँ के बजाय बड़े केबिन में बिठाओ, ओवर एंड ऑल, ब्राउन ने तेज लहजे में कहा और इसके साथ ही ट्रांसमीटर का बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा।
ब्राउन ने सर हिलाते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। आओ मेरे साथ, मुराद ने कुर्सी से उठते हुए कहा और इमरान खामोशी से उठ कर आ गया। सफदर भी उसके साथ ही खड़ा हो गया था। बैग बदस्तूर उसके हाथ में था। केबिन से बाहर निकलकर मुराद उन्हें साथ लेता हुआ आगे बढ़ता चला गया। कुछ फासले पर एक और बड़ा केबिन नजर आने लगा। लॉन्चों से आने वाले अफराद उनके पीछे पीछे चल रहे थे। बड़ा केबिन सिर्फ नाम का ही बड़ा न था, बल्कि दरहकीकत पहले केबिन से काफी बड़ा था और यहाँ किसी किस्म की कोई चीज मौजूद न थी। सिर्फ चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी। आप यहाँ बैठे, मैं बाहर जाकर बॉस को ले आता हूँ, मुराद ने कहा और तेजी से वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि उसके मुसल्ले साथी खामोशी से केबिन की अंदरूनी दीवारों के साथ लगकर खड़े हो गए। बज़ाहिर तो वो बड़े इत्मीनान से खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन इमरान ने मौर कर लिया था कि वो खासे चौकन्ने थे। अब ब्राउन के आने के बाद आपका क्या प्रोग्राम है? सफदर ने फ्रांसीसी जुबान में कहा। बिल्ली थैले से बाहर तो आए, फिर देखूंगा कि उसकी मूंछों की कितनी लंबाई है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और सफदर सर हिलाकर खामोश हो गया। वो इमरान का मूड समझ गया था। जाहिर है इसके बाद कोई बात करनी फजूल थी। ये कौन हो सकते हैं? मार्गरेट ने साथ बैठे हुए कार्टर से मुखातिब होकर पूछा। वो इस वक्त एक लॉन्च में बैठे हुए खुले समंदर में सफर कर रहे थे। बार से बाहर निकलकर जब कार्टर ने मखसूस इशारा किया तो एक नौजवान एक सतून के पीछे से निकलकर आगे आया और फिर वो नौजवान ही कार में बिठाकर उन्हें यहाँ साहिल पर ले आया और जीरो घाट पहुंचकर वो तीनों कार से निकलकर एक लॉन्च के करीब पहुंचे। उस नौजवान ने लॉन्च में मौजूद एक आदमी से बात की। आप इस लॉन्च पर सवार हो जाएं, ये आपको उस जगह ले जाएगा जहाँ बॉस ने कहा है। नौजवान ने लॉन्च वाले से बात करके कार्टर से मुखातिब होकर कहा और कार्टर ने सर हिला दिया। चुनांचे वो दोनों लॉन्च में बैठे खुले समंदर में सफर कर रहे थे। कार्टर ने उसे ब्राउन के फोन की तफसीलात वहीं अपने मखसूस कोड में बता दी थी, लेकिन मार्गरेट को कार घाट पर पहुंच जाने की वजह से बात करने का मौका ही न मिला था। इसलिए लॉन्च में बैठते ही उसने पूछ लिया, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये कौन लोग हो सकते हैं। हमने तो वहाँ कोई निशान नहीं छोड़ा और ये लोग ब्राउन तक कैसे पहुंच गए? बहरहाल इनसे मिलकर ही मालूम होगा, कार्टर ने होंठ चबाते हुए कहा। मेरे जहन में ख्याल आ रहा है, कहीं ये इमरान तो नहीं? मार्गरेट ने कहा। इमरान या सीक्रेट सर्विस? और नहीं, इन्हें सारे खेल का इल्म ही नहीं। बहरहाल हो सकता है। वैसे तुमने अच्छा किया कि ये आइडिया बता दिया, वरना मेरे जहन में अब तक ये ख्याल ना आया था। मैं यही सोच रहा था कि ये हो सकता है कि कोई ब्राउन का मुखालिफ ग्रुप हो। कार्टर ने होंठ चबाते हुए कहा। मार्गरेट सर हिलाकर खामोश हो गई। लॉन्च खुले समंदर में सफर करती हुई एक छोटे से जजीरे पर पहुंच गई। लॉन्च चलाने वाले ने उसे एक हुक किया तो कार्टर और मार्गरेट लॉन्च से कूद कर चट्टानों पर आ गए। उसी लम्हे ऊपर से एक मुकामी आदमी नीचे उतर आया। मेरा नाम मुराद है, मैं बॉस मुराद ब्राउन का आदमी हूँ। बॉस ने आपके मुतालिक मुझे बता दिया है, आइए। आने वाले ने करीब आकर कार्टर से मुखातिब होकर कहा। उसका लहजा खासा मौदबाना था। ओह, तो तुम यहाँ आदमी को लाए हो, मुझे तफसील बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ? कार्टर ने मुराद के साथ ऊपर चढ़ते हुए कहा और मुराद ने तफसील बतानी शुरू कर दी। जजीरे पर चढ़कर अब वो केबिन की तरफ जा रहे थे। ये लोग मौजूद तो हैं, ऐसा न हो कि वो निकल जाएं। कार्टर ने इधर उधर देखते हुए कहा। यहाँ से इजाजत के बगैर कोई नहीं जा सकता जनाब, वो बड़े केबिन में मौजूद हैं। बॉस ने उन्हें बड़े केबिन में बिठाने के लिए कहा था। उसके बाद बॉस ने मुझे ट्रांसमीटर पर कॉल किया। ट्रांसमीटर छोटे केबिन में है और मुझे बताया कि आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको उनके पास ले जाया जाए। मुराद ने जवाब दिया। कार्टर ने सर हिला दिया। छोटे केबिन से गुजरते हुए वो और आगे बढ़ गए और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें वो बड़ा केबिन नजर आने लगा। तुमने उनकी तलाशी ले ली थी? कार्टर ने चलते चलते अचानक एक ख्याल के तहत पूछा। तलाशी? नहीं, तलाशी तो नहीं ली, उसकी क्या जरूरत थी? मुराद ने चौंक कर जवाब दिया। यहाँ तुम्हारे आदमी हैं? कार्टर ने एक लम्हा खामोश रहने के बाद पूछा। बड़े केबिन के अंदर 6 मुसल्ले अफराद मौजूद हैं। मैं उन्हें एहतियातन अपने साथ लाया था। वैसे यहाँ जजीरे पर 5 मुसल्ले आदमी मौजूद हैं, वो मुस्तकिल तौर पर यहीं रहते हैं, मुराद ने जवाब दिया। गुड, कार्टर ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। वो अब बड़े केबिन के करीब पहुंच चुके थे। केबिन का दरवाजा अंदर से बंद था। मुराद ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला और खुद एक तरफ हट गया।
कार्टर और मार्गरेट केबिन के अंदर दाखिल हुए और उनके पीछे मुराद अंदर दाखिल हुआ। सामने कुर्सियों पर 2 मुकामी अफराद बैठे हुए थे। ये दोनों आदमी हैं जनाब, मुराद ने कुर्सी पर बैठते हुए अफराद की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, मैंने देख लिया है, कार्टर ने होंठ भींचते हुए कहा। उसकी नजरें एक आदमी पर जमी हुई थी जिसके चेहरे पर भी उसके लिए दिलचस्पी के आसार नुमाया थे। तुम्हारा नाम अली इमरान है? कार्टर ने होंठ भींचते हुए कहा। बिल्कुल है, उस नौजवान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया और कार्टर के साथ खड़ी मार्गरेट ये सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ी। लेकिन तुमने तो मुझे ब्लैक कोबरा बताया था, मुराद ने एक लख्त गुस्सीले लहजे में पूछा। तुम खामोश रहो, मुझे बात करने दो, कार्टर ने सख्त लहजे में मुराद से मुखातिब होकर कहा। तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? कार्टर ने कहा। ये शख्स हमें यहाँ ले आया, पूछ लो इससे। बड़ी खूबसूरत सी लॉन्च थी, बड़े शानदार सफर हुआ इसमें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम इस आदमी तक कैसे पहुंचे? कार्टर ने सख्त लहजे में कहा। कैसे पहुंचे थे यार सफदर? दरअसल मेरी याददाश्त, ओह हाँ याद आ गया, कार पर आए थे, इमरान ने पहले करीब बैठे आदमी से मुखातिब होकर सर पर हाथ मारते हुए कहा और फिर चौंक कर खुद ही बता दिया। इसका नाम सफदर है और यह पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुतल्लिक है। मैं ठीक कह रहा हूँ? कार्टर ने कहा। कमाल है, हमारे यहाँ एक तबका होता है मिरासी, बड़ा काम का तबका होता है। वो ना सिर्फ सबको जानता है बल्कि उनके पूरे खानदान, उनका शजरा नस्ब सब जुबानी याद होते हैं। मेरा ख्याल है तुम भी उसी तबके से ताल्लुक रखते हो, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें कैसे पता चला कि ब्राउन ने डॉक्टर रशीद और उसकी बेटी को अगवा किया है? कार्टर ने झुलाकर उस बार सीधी बात कर दी। डॉक्टर रशीद और उसकी बेटी? क्या मतलब? मैं कोई तुम्हारी तरह मिरासी तो नहीं हूँ, शरीफ आदमी हूँ, मुझे भला उनके अगवा का कैसे इल्म हो सकता है? और फिर मेरा उनसे क्या ताल्लुक? मैं तो अपनी पार्टी के लिए यहाँ आया था, ब्राउन से मिलने। इमरान ने लहजे में ऐसी बेसाख्ता हैरत थी कि कार्टर भी चौंक पड़ा। बकवास मत करो, तुम अभी तक सिर्फ इसलिए जिंदा हो कि मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमने ब्राउन का सुराग कैसे लगाया है। कार्टर का लहजा बेहद सर्द हो गया था। तुम्हें शायद अपने मुतालिक जरूरत से ज्यादा खुशफहमी है मिस्टर कार्टर। तुमने ये समझा था कि रेड एजेंसी यहाँ इतनी बड़ी वारदात कर गुजरेगी और किसी को भी मालूम ना होगा। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, समझे? एक लख्त इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। उसके चेहरे के तासुरात और लहजा इस तरह बदल गया था जैसे उसकी काया ही पलट गई हो। वो चंद लम्हे पहले वाला इमरान लग ही नहीं रहा था। दूसरा आदमी सफदर भी उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। ओह, मुझे कैसे जानते हो? कार्टर ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा और उसके साथ ही उसने बिजली की सी तेजी से रिवॉल्वर जेब से निकाल लिया। अब ये भी बताओ, चलो तुम भी क्या याद करोगे, मरने से पहले ये भी तुम्हें इल्म हो जाना चाहिए। सुनो, ये तुम्हारी मंगेतर मार्गरेट है ना? ये लॉर्ड ग्राहम वुड की इकलौती बेटी है और तुम रेड एजेंसी के स्पेशल एजेंट हो और रेड एजेंसी का चीफ बॉस कर्नल मार्कर है। और ये सुन लो कि ये जजीरा सीक्रेट सर्विस के घेरे में है और डॉक्टर रशीद और उसकी बेटी रजिया इस ब्राउन समेत सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में पहुंच चुके हैं। ये सारा खेल मुझे इसलिए खेलना पड़ा कि तुम सामने आ जाओ और देखो तुम कितने इत्मीनान से सामने आ गए हो, इमरान ने करख्त लहजे में कहा। बकवास मत करो, अभी चंद लम्हों बाद तुम्हारी लाशें यहाँ फड़क रही होंगी, कार्टर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। यकीन नहीं आ रहा तो मुराद और उसके साथियों से पूछ लो, उन सबका ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है, इमरान ने तेज लहजे में कहा। क्या? कार्टर इमरान की बात सुनकर एक लख्त बुरी तरह चौंक कर पास खड़े हुए मुराद की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक इमरान का जिस्म बिजली की इसी तेजी से हरकत में आया और दूसरे लम्हे उसने दीवार के साथ खड़े मशीन गन बरदार को एक लख्त उछाल कर न सिर्फ अपने सामने कर लिया बल्कि उसकी मशीन गन भी उसके हाथों में पहुंच गई। और जिस लम्हे इमरान अपनी जगह से उछलकर उसी लम्हे सफदर ने हाथ में पकड़ा हुआ थैला पूरी कुव्वत से घुमाकर कार्टर पर फेंक मारा। वजनी थैला कार्टर के सीने पर पड़ा और वो चीख मारकर नीचे गिरा ही था कि इमरान की मशीन गन तड़तड़ा उठी और दूसरे लम्हे
केबन इंसानी चीखों से गूंज उठा। ये सब कुछ इस कदर हैरत अंगेज तेजी से हुआ था कि मुराद और उसके साथी समझ ही न सके, और सफदर की यकलख बैट मारने से कार्टर भी रिवॉल्वर न चला सका। मार्गरेट चीखती हुई वापिस मुड़ने लगी थी कि सफदर ने छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो मार्गरेट को पकड़कर अपने सामने रखते हुए घसीटता हुआ दीवार से जा लगा। मुराद और उसके साथी इमरान के पहले ही राउंड में खत्म हो गए थे। सिर्फ वो आदमी ही बचा था जो इमरान के सीने के सामने था, और पहला राउंड चलाकर इमरान ने उसे भी यकलख कार्टर पर उछाल दिया, जो नीचे गिरते ही बिजली की सी तेजी से उठ रहा था। उस आदमी के टकराने से वो एक बार फिर चीखता हुआ नीचे गिरा, और उसी लम्हे इमरान की मशीन गन एक बार फिर तड़ाई और आदमी बुरी तरह चीखता हुआ तड़पने लगा। इमरान बिजली की इसी तेजी से आगे बढ़ा, और फिर इससे पहले कार्टर उठता, इमरान ने यकलख मशीन गन उछाल कर उसकी नाल से पकड़ा और उसका दस्ता पूरी कुव्वत से उठाते हुए कार्टर के सर पर मार दिया। दस्ता धमाके से उसकी खोपड़ी से टकराया और वो धड़ाम से वापस आ गया, लेकिन इसके बावजूद उसने दोबारा उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने दूसरा वार कर दिया और इस बार कार्टर के हाथ पैर सीधे हो गए। सफदर की गिरफ्त से निकलने के लिए मार्गरेट अपना पूरा जोर सर्फ कर रही थी, लेकिन सफदर ने न सिर्फ उसे काबू कर रखा था, बल्कि उसने एक हाथ उसके मुंह और एक हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लगाकर पूरी कुव्वत से जमा रखा था। खबरदार अगर तुमने आवाज निकाली। इमरान ने कार्टर के बेहोश होते ही तेजी से मुड़कर मार्गरेट से मुखातिब होकर घुराते हुए कहा, मम्मा। मार्गरेट ने खौफजदा लहजे में कुछ कहना चाहा ही था कि सफदर ने यकलख हाथ छोड़कर उसे आगे की तरफ धकेल दिया और उसके साथ ही इमरान का बाजू लहराया और उसका मुक्का पूरी कुव्वत से मार्गरेट की कनपटी पर पड़ा और वो इस तरह उछलकर फर्श पर गिरी जैसे उसके जिस्म में हड्डियों के बजाय स्प्रिंग लगी हो। कनपटी पर पड़ने वाली जोरदार जर्ब से उसने न सिर्फ चीखने दिया, बल्कि वो फर्श पर गिरकर साख्त हो गई। ये सारा खेल ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में मुकम्मल हो गया और अब इस केबन में इमरान और सफदर खड़े हुए थे, जबकि मुराद और उसके साथियों की लाशें बिखरी पड़ी थी और कार्टर और मार्गरेट दोनों बेहोश पड़े हुए थे। बॉस, बॉस! अचानक बाहर से चीखती हुई आवाज सुनाई दी, क्योंकि केबन का दरवाजा बंद था और केबन की बनावट ऐसी थी कि उसमें कोई खिड़की भी ना थी। क्या बात है? अचानक इमरान ने मुराद के लहजे में चीखते हुए जवाब दिया, ओह ठीक है बॉस, मुझे ख्याल आ गया था कि कहीं गड़बड़ ना हो गई हो। मुराद की आवाज सुनकर बाहर से मुतमईन सी आवाज सुनाई दी, सुनो, सब साथियों को छोटे केबिन में जमा करो और खुद भी वहां पहुंचो, हम आ रहे हैं, जल्दी करो। इमरान ने चीखकर मुराद के लहजे में कहा, यस बॉस। बाहर से आवाज सुनाई दी और इमरान पंजों के बल चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा जरा सा खोला और बाहर झांकने लगा। दूसरे लम्हे उसने एक मशीन गन बरदार को एक साइड से निकलकर छोटे केबिन की तरफ तेज तेज कदम उठाते हुए देखा। तुम इनका ख्याल रखना सफदर, मैं अभी आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया।